Hallelujah. Hallelujah. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले, Peace to each one. हर एक को शांति हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for He has gathered us. यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें इकट्ठा किया है। Welcome Him with whole heart. और पूरे हृदय से आइए उसका स्वागत करें। Let He minister unto us. और वह हमारे बीच में काम करे। Let He touch our ear. और वह हमारे कानों को छू ले। Let He touch our heart. और वह हमारे हृदय को छू ले। Let He open our eye. और वह हमारी आंखों को खोल दे। So that we can know His wisdom. ताकि हम उसके ज्ञान को जान ले। So that we can come more close to Him. ताकि हम उसके और करीब आ जाए। And we come to know Him. और हम उसको जान पाए। Holy Spirit, we love you. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते We हैं। believe in you. हम आप में विश्वास करते हैं। Come, we welcome you. आप आओ, हम आपका स्वागत करते Take हैं। our control. हमारा नियंत्रण लो। If there is sin, forgive us. यदि कोई पाप है तो हमें माफ करो। If there is sickness, heal us. यदि कोई बीमारी है तो हमें चंगाई दो। Lord, whatsoever that hindrance, remove it, Lord. प्रभु, जो कोई भी रुकावटें हो उसे हटा दो। Open our eyes हमारी आंखें खोल दो so that we can see you. ताकि हम आपको देख सके। Your word says, आपका वचन कहता है without holiness you cannot see God. पवित्रता के बिना आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। And without faith you cannot please God. और विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। We want faith, Lord. प्रभु, हम विश्वास पाना चाहते हैं। Open our eyes हमारी आंखें खोलो so that we can see you. ताकि हम आपको देख सके। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Help us when we are studying your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी मदद करो। Make each one understand. और हर एक को आप समझाओ। Help us, Lord. प्रभु, हमारी मदद करो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, bless each one. पिता, हर एक को आशीष दो। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Shalom. शालोम। Jesus gave parable to whoever came to him. यीशु मसीह के पास जो कोई भी आए उनको यीशु ने दृष्टांत दिया। Matthew 13 chapter, whole chapter, there are 7 in that chapter, there are 7 parables. मत्ती का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसके पूरे अध्याय में 7 दृष्टांत है। Yes. There are 7 parables. उसमें 7 उदाहरण है। And so disciples said, Lord, why you are speaking in parable? इसलिए चेलों ने पूछा कि प्रभु, तू दृष्टांत में क्यों बात करता है? Why you are speaking such mysterious thing? तू ऐसे मर्म की बातें क्यों बोलता है? For he said there was one farmer and he went out to sow in his field. क्योंकि यीशु ने कहा कि एक किसान था और वह बीज बोने के लिए निकला। And some seed they fell beside the road. और कुछ बीज मार्ग के किनारे में गिरे। That is verse written in verse 4. यह चौथे वचन में लिखा गया And है। the birds of the air came and ate it. और आकाश के पक्षी आए और उस बीज को खा लिए। Verse 5. 5वां वचन। Other seed when this farmer was sowing, और यह किसान जब बीज बो रहा था तो कुछ बीज ऐसे थे that fell on the rocky area where they did not have much soil, and immediately they rose up because they had no depth of soil. और कुछ पथरीली भूमि में पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। And after the sunrise rose, they were burnt. और जब सूरज निकला तो वे जल गए। And this seed they dried up because there was no root. और उनकी जड़ ना होने की वजह से वे सूख गए। Verse 7. 7वां वचन। Other when he was sowing, some fell in the throne. और जब किसान बो रहा था तो कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। Upon the thrones it went and fall. वह कांटों के ऊपर जाकर गिरे। And thorns stood up and shook them. और झाड़ियों ने Choked बढ़कर them. उन बीजों को दबा डाला। Verse 8. 8वां वचन। Another fell in a good soil और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे and it gave fruit. और उन्होंने फल दिया। Some gave 100 times, कुछ ने 100 गुना दिया some gave 60 times, और कुछ ने 60 गुना and दिया some gave 30 times. और कुछ ने 30 गुना दिया। And Jesus said, और यीशु ने कहा whoever here listen this story, कि जिसके कान हो वह यह कहानी सुन ले let them understand. और वे इसे समझ ले। Let them listen. वे सुने Let they understand. और वे समझे।
So Jesus gave such story when people came hungry, seeking God. तो जब लोग भूखे होकर परमेश्वर को ढूंढते हुए आए तो यीशु ने ऐसी कुछ कहानी बता दी They were not interested in this type of story. और लोगों को इस तरह की कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। Lord, what is this story you are talking about? प्रभु ये कहानी आप बोल रहे हो ये क्या है? People are in need to know God. लोग परमेश्वर को जानने की जरूरत में थे And Lord, you are speaking parables. और प्रभु तू तो दृष्टांत में बोल रहा है। To disciple us, why you have been speaking in mystery? चेलों ने यीशु से पूछा कि तू गुप्त में मर्म में क्यों बोलता है? Verse 11. 11वां वचन। And Jesus answered to his disciple, और यीशु ने अपने चेलों से जवाब दिया it has been given to you कि to know the mystery of the kingdom of heaven. कि स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ तुम्हें दी गई है कि तुम उसे समझो। Disciple, you can understand. चेलो तुम समझ सकते हो But it is not given to those other men. लेकिन दूसरे लोगों को यह बात नहीं दी गई So है। word are for chosen people. तो वचन पसंद किए हुए लोगों के लिए है। Whom Lord has called, for them there are word. प्रभु ने जिनको बुलाया है उनके लिए वचन है। So Lord said, I speak it is mystery for other people, but you can understand what I say. तो प्रभु ने कहा कि जो मैं बोलता हूँ वह भेद की बात दूसरे लोगों के लिए हो सकती है लेकिन तुम लोग उसे समझ सकते हो। Jesus said some seed, it grew up and it gave 30-fold or 30 times. यीशु ने कहा कि कुछ बीज उगे और उन्होंने 30 गुना फल दिया। Some grew up 60 और कुछ उगे और उन्होंने 60 गुना फल दिया। and 100 times. और Other 100 times. कुछ बीज ने 100 गुना फल दिया। So what Jesus was speaking about? तो यीशु क्या बात कर रहा था इससे? And Jesus said, I talk, but you can understand. यीशु ने कहा मैं बात करता हूँ लेकिन उसे तुम समझ सकते हो। Other cannot understand, and that is mystery for them. दूसरे लोग इसे नहीं समझ सकते और दूसरे लोगों के लिए यह भेद की बात है। He said, यीशु ने कहा because they are seeing, they see not. That's why I'm speaking like that. क्योंकि वे देखकर भी देख ना पाए इसीलिए मैं इस तरह से They बोलता are हूँ। listening the story, but they cannot understand what you are talking about. वे लोग कहानी तो सुन रहे हैं लेकिन तुम क्या कह रहे हो उसे समझ ना पाए। They are hearing, they are hear not. Verse 13. और सुनते हुए भी ना सुने और नहीं समझे। That was the Yeshaya. That was prophecy spoken by Yeshaya. यह भविष्य वचन बोला गया था यशाया के द्वारा That Lord will come कि प्रभु आएगा and he will speak in parable. और वह दृष्टांत में बातें करेगा And who are listening, और जो सुन रहे होंगे they will not able to understand. वे समझ नहीं पाएंगे And who are watching, और जो लोग देख रहे होंगे they shall not perceive. और वह लोग भी उसे परख नहीं पाएंगे। So Lord, teaching was hard to understand for people. तो लोगों के लिए प्रभु का शिक्षण समझने के लिए बहुत कठिन था। But Lord gave grace to his own people. लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को अनुग्रह दिया। When we read Bible, जब हम बाइबल पढ़ते do we हैं understand? क्या हम समझते हैं? We need grace. हमें अनुग्रह की जरूरत है। Whole Bible is mystery for each people. हर एक व्यक्ति के लिए पूरा बाइबल भेद की बात है। But for some get grace and they understand. लेकिन कुछ लोग अनुग्रह पाते हैं और वे समझते हैं। If you are able to understand what Jesus is saying, यीशु क्या कह रहा है यदि वह बात को आप समझ पाते then you हो are chosen person. तो फिर आप पसंद किए हुए व्यक्ति हो। But all that message goes up in air, क्योंकि हो सकता है सब लोगों के लिए वह संदेश शायद ऊपर से जाए। then you are not receiving grace. तो फिर यदि ऐसा है आपके साथ तो फिर आप अनुग्रह नहीं पा रहे Still हो। eye is lacking, अब तक आंखों की कमी है, ear is lacking, कान की कमी है understanding heart is lacking. और समझने वाला हृदय की अब तक कमी है। We need grace to understand what Jesus said. या यीशु ने जो कहा उसे समझने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। He said, I'm preaching message to each one. यीशु ने कहा कि मैं हर एक के सामने संदेश बांट रहा हूँ। Some don't understand, कुछ लोग नहीं समझते and they are like roadside people. और मार्ग के किनारे के जो लोग होते हैं ऐसे लोग हैं। And other people are listening, they
accept it quickly. और कुछ लोग सुनते हैं और सुनकर जल्दी से उसका स्वीकार कर लेते हैं। But when temptation comes, situation, bad situation arise, लेकिन जब परीक्षा आती है, खराब परिस्थिति आती है, then they are depressed. तब वे लोग They निराश lose हो their जाते हैं। hope वे लोग निराश होकर अपनी आशा खो देते हैं and they give up. और वे रुक जाते हैं। So 30% of work we find in those people. तो उन लोगों में 30 Yes, 30%. 30 गुना या 30% तक का काम होते हुए हम देखते हैं। Other who listen the message, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संदेश सुनते हैं, but they are in the worldly, they are not committed, or they are forsaken or lost, or they are give up or earthly thing. वो लोग संसार में रहते हैं और सांसारिक बाबतों को पूरी रीति से उन्होंने छोड़ा नहीं है। But because they are in worldly problems, they are attached with worldly things, सांसारिक समस्याओं में वे फंसे हुए हैं और भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, so they don't give much fruit. इसीलिए वे ज्यादा फल नहीं देते। They just give 60%. वे केवल 60 गुना फल देते And we हैं। can see they are rising but not uppermost. और हम देखते हैं कि वे उगते हैं लेकिन पूरी रीति से ऊपर नहीं We आते। don't see them fulfilling God's word, or they are not doing exactly as God want they should do. परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए हम उन्हें नहीं देखते और परमेश्वर को जैसा चाहिए वैसा ही उनके द्वारा होते हुए हम नहीं देखते But हैं। other people are of good heart. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अच्छे हृदय वाले होते And हैं when they listen voice of God, और जब वे लोग परमेश्वर का आवाज सुनते हैं, the word is seed, Jesus explained. यीशु ने कहा कि वह वचन तो बीज है। Yes, that seed when it is sowed in the heart, वह बीज जब हृदय में बोया जाता है it grew up 100-fold. तो वह बीज 100 गुना फल देता है। 100% sure you can see all what Lord want to do, the work we see. प्रभु जो करना चाहता था वह सारा काम 100 गुना हम देख सकते हैं। They can understand each thing. वे लोग हर एक बात को समझ सकते Other हैं people and try to understand, and they have 30% they are able to understand. और दूसरे लोग समझने की कोशिश करते हैं और 30 गुना तक वे समझ सकते हैं। Other try and they are up to 60% they come to Lord. कुछ लोग प्रयास करते हैं और 60 गुना तक वे प्रभु के पास आ सकते And हैं there are few who can reach to God. और कुछ होते हैं, बहुत कम होते हैं जो परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। So Lord was speaking mystery to the people. तो प्रभु भेद की बातों को लोगों के सामने बोल रहा था। Today life is a mystery thing. आज जीवन एक मर्म की बात है। All thing is mystery for us today. आज सारी बातें हमारे लिए मर्म की बातें What will हैं। happen to my life? मेरे जीवन का क्या होगा? What I will gain, or I will be profit. I will have profit. मुझे क्या मिलेगा या मेरा क्या फायदा होगा? Disciple also one time asked, Lord, what will we receive if we follow you? चेलों ने भी पूछा कि प्रभु यदि हम तेरे पीछे हो ले तो हमें क्या मिलेगा? So they were searching what will happen. तो वे लोग यह ढूंढ रहे थे कि आगे क्या होगा, क्या मिलेगा। When we read Bible, we are wonder. जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम अचंभित हो जाते We want to हैं। know what Bible says. बाइबल क्या कहता है हम वो जानना चाहते हैं। We live with the people and we seek what this man is. हम लोगों के साथ जीते हैं और हम जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति क्या है, कौन है। What is this man? यह व्यक्ति कौन है। So everything surround us is mysterious thing. तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी है सब भेद की बातें हैं। Bible teaches if you are chosen, you will find out each thing. बाइबल सिखाता है कि यदि आपको पसंद किया है तो आप सारी बातों को समझ पाओगे। Now fourth thing I'm going to share. अब 4 बातों को मैं बताऊंगा। If you have these 4 things, यदि if you आप do this 4 thing, यदि आप यह 4 बातों को करो then you can understand each hidden thing. तो आप हर एक भेद की बात को समझ सकते हो। Even you can understand your dream. आप आपके स्वप्न को भी समझ सकते You हो। can understand a man. आप कोई मनुष्य को भी समझ सकते हो।
woman is hard to understand. You can understand woman. औरत को समझना मुश्किल है, आप उसे भी समझ सकते हो। You can understand each thing. आप हर एक बात को समझ सकते हो। When Jesus sent 70 disciples, जब यीशु ने 70 चेलों को भेजा, Luke 10 chapter verse 1, and this 70 disciples came back with joy. लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय पहला वचन, और वह 70 चेले आनंद के साथ वापस आए। And they were rejoicing, saying, Lord, in your name we have cast out demon, and in your name we saw the demons controlled. They have been controlled. और उन्होंने आनंद से कहा कि प्रभु तेरे नाम में हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में आ गए। And we have healed the people. और हमने लोगों को चंगा भी किया। And whatever we said, it happened. और हमने जो कोई भी आज्ञा दी ऐसा हुआ। And they were rejoicing. और चेले वह सब देखकर आनंद करते And थे। Jesus also rejoiced seeing this his disciple. और यीशु ने भी अपने चेलों को देखकर आनंद किया। Verse 21 says, 21वां वचन कहता है, in that same hour Jesus rejoiced in his spirit उसी घड़ी यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया and said, और कहा, thank you, O Father. हे पिता तेरा धन्यवाद। O Lord of heaven, thank you. हे स्वर्ग के प्रभु तेरा धन्यवाद। Lord of earth, I thank you. हे पृथ्वी के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। For such hidden thing you have revealed this to this baby. कि ये जो गुप्त बातें थी वह तूने ये बालकों के सामने प्रकट की। The hidden thing for the wise and prudent. It was a hidden for wise and prudent. ज्ञानियों और समझदारों के लिए यह सब छिपा रखा था। They didn't understand this revelation. वे लोग इस ज्ञान को नहीं समझ पाए। But to this, my disciple, Father, you have revealed them. लेकिन पिता तूने मेरे इस चेलों को यह सब प्रकट किया। So Jesus said, my Father has revealed you. तो यीशु ने कहा कि मेरे पिता ने तुम्हें प्रकट किया। Once Jesus asked, who am I? एक बार यीशु ने पूछा मैं कौन हूँ? And all disciples said, Lord, some people say you Jeremiah, some call you John the Baptist. और चेलों ने कहा कि प्रभु कुछ लोग तुझे यर्मिया कहते हैं, कुछ लोग तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते And हैं। Lord asked Peter, what do you say about me? और प्रभु ने पतरस से पूछा कि पतरस तू मेरे बारे में क्या कहता है? And Peter said, Lord, you are Son of the living God. और पतरस ने जवाब दिया कि प्रभु तू जीवित परमेश्वर का बेटा You है, are the Christ. तू मसीहा है। And Jesus said, my Father has revealed you this hidden thing. और यीशु ने कहा कि यह गुप्त बात मेरे पिता ने तुझे बताई। So, it is God's grace you can understand each thing. That is the first truth. तो पहला सत्य यह है कि आप सब बातों को यदि समझ सकते हो तो वह परमेश्वर का अनुग्रह है। 1 Corinthians 2:10 says, पहला कोरिन्थी का पत्र 2 अध्याय 10वां वचन कहता Paul है, said, God has revealed everything through His Spirit. By Spirit. पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा सारी बातों को हमारे सामने प्रकट किया। God has sent His Spirit, परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा and that Spirit had searched the deep thing of God. और वह आत्मा ने परमेश्वर की वह गहरी बातों को ढूंढा And He talked to us. और वह उसने हमारे साथ बात की And God has revealed the hidden thing. और परमेश्वर ने वह भेद की बातों को प्रकट किया। But because it was a prophesy in the 9 verse, क्योंकि 9वें वचन में वह भविष्य वचन था the eye that had not seen, कि आंखों ने जो नहीं देखा even your ear had never had heard, और कान ने जो नहीं सुना है कभी, and the thing that had not entered in your heart, और जो बातें मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ी नहीं, the thing that is prepared only for those whom have loved God. ऐसी बातें केवल उनके लिए तैयार की गई है जो परमेश्वर से प्रेम रखते So हैं। if you love God, तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते then हो God will make you reveal everything. तो परमेश्वर आपके सामने सब कुछ प्रकट करेगा। God can reveal you anything. परमेश्वर आपको कुछ भी प्रकट कर सकता है। Whatever is secret for the world, दुनिया के लिए जो कुछ भी गुप्त है, God can reveal it to you. परमेश्वर वह बात को आपके सामने प्रकट कर सकता And if है। you love God, और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करो, you can know each thing. आप हर एक बात को जान सकते हो। Third thing, तीसरी बात, if you are a humble person, यदि आप नम्र व्यक्ति हो, FSC 3:8 says, एफएससी का पत्र 3 अध्याय 8वां वचन कहता है, Paul says,
पौलुस कहता है I am a lesser than the least of all the saints. कि पवित्र लोगों में से छोटे में से भी मैं छोटा हूँ, And God has given me grace और परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया to preach the Gentile, अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए। verse 9, 9वां वचन, to bring to light what is the fellowship of the mystery which from eternity had been hidden in God. और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। Paul says, पौलुस कहता I है am the smallest person among the saints, संतों में मैं सबसे छोटे में से भी छोटा हूँ, but God has chosen me to preach the Gentile, लेकिन प्रभु ने मुझे अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए पसंद किया, so that the hidden riches of the Christ I can share it and bring the people in the light. ताकि मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार मैं जानूं और विदेशियों के सामने प्रकट करूं। The hidden thing of God, परमेश्वर की गुप्त बातें I receive it. मैंने उसे पाया, I am the smallest person. मैं सबसे छोटा So व्यक्ति if you हूँ। are a humble person, तो यदि आप नम्र व्यक्ति हो then you have wisdom. तो आपके पास ज्ञान है, God will talk with you. परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। If you are not using your mind, यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो तो, if you are using your mind, यदि आप अपनी सोच लगाते हो, दिमाग का इस्तेमाल करते then हो, God will say, very great, wise man, you can search. तो परमेश्वर कहेगा बहुत अच्छा महान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, तू आगे जाके अपने आप ढूंढ सकता है, You can search. तू ढूंढ सकता है। So God said even to Job, तो परमेश्वर ने अय्यूब से भी कहा, do you know क्या तू जानता है where were you? कि तू कहाँ था? And Job humbled himself और अय्यूब ने अपने आप को नम्र किया, and said, Lord, I spoke, that was not right. That was not, I should speak. और अय्यूब ने कहा कि प्रभु जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था वह मैं बोला, I curse my day of my birth. और मेरे जन्म के दिन को मैंने श्राप दिया, Even I praise myself. और मैंने अपने आप की बड़ाई भी की, I gave a testimony about myself. मैंने मेरे बारे में गवाही दी, I am nothing. I'm dust and I'm sitting in dust. मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं धूल हूँ और अब मैं मिट्टी में बैठा हूँ। So when you humble yourself, तो जब आप अपने आप को नम्र करते हो, God give you grace. परमेश्वर तब आपके ऊपर अनुग्रह करता है। Peter said about Paul in 2 Peter 3 and verse 15. पत्रस ने पौलुस के बारे में कहा, दूसरे पत्रस का पत्र 3 अध्याय 15वें वचन में, Consider also that our Lord patience brings salvation, just as our beloved brother Paul wrote you with wisdom that God gave him. और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। Peter, the head of the church, पत्रस जो कलीसिया का सिर था, he is praising Mr. Paul. और वह श्रीमान पौलुस की प्रशंसा कर रहा है, Because Paul says, क्योंकि पौलुस कहता है I am not comparing with the big saint. बड़े संतों के साथ मैं अपने आप की तुलना नहीं कर रहा हूँ। I am nothing before this holy saints. यस पवित्र संतों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। I know I am a sinner मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, and I have persecuted the church और मैंने कलीसिया का सताव किया, and I am nothing before the saint. और संतों के सामने मैं कुछ भी नहीं I am हूँ, the least among the saints. संतों में मैं सबसे छोटा हूँ। And Peter said, no, this Paul got wisdom. और पत्रस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पौलुस ने तो ज्ञान पाया है। So to humble God give understanding. तो नम्र लोगों को परमेश्वर समझदारी देता Daniel है। 10 chapter 10 11 verse 12 says, दानियल की किताब 10वां अध्याय 11वां और 12वां वचन कहता है, Daniel was confused दानियल उलझन में पड़ा and he था was praying, Lord, talk to me and speak the mystery. और दानियल प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे साथ बात कर और यह मर्म की बात मुझे बता, Tell me what is the reason. इसके पीछे का कारण क्या है मुझे बता। Angel appeared और स्वर्गदूत प्रकट हुआ and he said, और उसने कहा, fear not, O Daniel. हे दानियल डर मत, From that first day you have set your heart to understand and you have made humble yourself. क्योंकि पहले दिन से जब तूने समझने का प्रयास किया,
उसी 12th दिन verse. फिर उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा है, दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। You are humble yourself. तूने अपने आप को दीन किया, नम्र किया। On the same day, उसी दिन I came to you. उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे पास आया। Daniel, you are greatly beloved man of God. दानियल, तू तो परमेश्वर का अति प्रिय व्यक्ति है। Now I came to make you understand. अब मैं तुझे समझाने के लिए आया हूँ। Bible says in Proverbs 11 and verse 12, let's speak behind me. Yes, 2 verse. बाइबल कहता है, नीति वचन की किताब 11वां अध्याय 2 वचन, आइए सब मेरे पीछे बोले। But who are humble, लेकिन जो नम्र होते हैं, who are lowly, जो नम्र होते हैं, they have wisdom. उनके पास ज्ञान है। Who are wise, जो ज्ञानी है, remember, याद रखो they are humble. कि वे नम्र है। Those who are humble, with them there is wisdom. जो लोग नम्र होते हैं उनके साथ ज्ञान होता है। God said about Moses. परमेश्वर ने मूसा के बारे में कहा, Number 12 chapter verse 5. गिनती की किताब 12वां अध्याय 5वां वचन। Moses has a relationship with some, we know. मूसा का संबंध कुछ लोगों के साथ था, हम जानते हैं। And because of that affair, his brother, sister, they were against. और उस काम की वजह से मूसा ने जो किया था, उसकी क्या वजह काम किया था? उसी स्त्री के साथ ब्याह किया था और उसकी वजह से उसके भाई और बहन ने एफआईआर दर्ज की थी। So, verse 5 says, इसलिए 5वां वचन कहता है, Jehovah came down यहोवा नीचे उतरा, in the pillar of cloud. बादल के खंभे में And he उतरा was angry with Moses, Aaron and Miriam. और यहोवा हारून और मरियम के साथ गुस्से में था। And he said, और उसने कहा, I came from heaven down. मैं स्वर्ग से नीचे उतरा हूँ, Now you both come out from your tent. अब तुम दोनों अपने तंबू से बाहर आओ। Now listen this. और अब यह सुन लो, If there is prophet among you, यदि तुम्हारे मध्य में कोई भविष्यवक्ता है तो I, the Jehovah, तो मैं यहोवा, I will reveal him myself. तो मैं यहोवा अपने आप को उसके सामने प्रकट करूंगा I will reveal myself in his vision. और उसके दर्शन में मैं प्रकट होऊंगा And I will speak him in dream. और स्वप्न में मैं उसके साथ बात करूंगा। Even the dream is mystery, यदि वह स्वप्न मर्म वाला होगा I तो भी will make him understand. मैं उसे समझाऊंगा, I will talk him face to face. मैं उसके आमने सामने बात करूंगा, I will speak with him face to face. मैं उसके सामने रहकर बात करूंगा। Verse 8 says, 8वां वचन कहता I है, will speak to the person who is a prophet. जो भविष्यवक्ता होगा उसके साथ मैं बात करूंगा, Clearly I will speak. उसके सामने मैं प्रत्यक्ष होकर बात And करूंगा not in riddle. और गुप्त रीति से नहीं, And he will know me. और वह मुझे जान पाएगा। So why you are not afraid of this Moses? तो फिर तुम इस मूसा से डरे क्यों नहीं? You know verse 3? क्या तुम 3रा वचन जानते This हो Moses was very meek. कि यह मूसा बहुत ही नम्र व्यक्ति था। Above all the men that were upon the face of the earth, he was the meekest person. मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। So who are humble, तो जो लोग नम्र होते हैं they can write Genesis. वे लोग उत्पत्ति लिख सकते हैं, And who are humble, और जो लोग नम्र होते they हैं can know Revelation. वे लोग प्रकाशित वाक्य को भी जान सकते We know हैं। Jesus Christ, he wrote Revelation. He is the author of Revelation. हम यीशु मसीह को जानते हैं, उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। If you are humble, यदि आप नम्र हो, you will receive wisdom. आप ज्ञान पाओगे। Don't try your head. तो आपके सिर को ज्यादा परेशानी मत दो, Humble yourself before Lord. प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करो, Bow down before him. उसके सामने झुको, Only bow down before him. केवल उसके ही सामने झुको, And he will give you grace. और वह तुम्हें अनुग्रह देगा। And be the lowest person. और सबसे नीचा व्यक्ति बनो, So he can put his wisdom, God can put his wisdom before. ताकि परमेश्वर अपने ज्ञान को आपके सामने प्रकट करे। Amen. आमेन। Fourth thing, चौथी बात, if you are servant of God,
यदि आप परमेश्वर के सेवक हो तो, if you are really servant, यदि सच में आप सेवक हो you know तो, what means servant? सेवक या दास का अर्थ क्या है आपको पता है? Today people, if you ask what is the meaning of servant, आज के लोगों को यदि आप पूछो कि दास का अर्थ है, they will say servant of God should wear white shirt, तो वे कहेंगे कि परमेश्वर के सेवकों को सफेद शर्ट पहनना चाहिए black pant, और काला पैंट पहनना चाहिए, no another color. कोई दूसरे रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। In their right hand there should be bag of Bible, और bag with Bible, उनके दाहिनी बगल में बाइबल की बैग होनी चाहिए, and they should smile with each to all people. और सब लोगों के सामने वे उनको मुस्कुराना चाहिए। Whoever receive or not, do they hate, they smile. Whoever invite them or not invite, they smile. उनको कोई बुलाए या ना बुलाए, निमंत्रण दे या ना दे, सबके सामने जाकर मुस्कुराए। So this is the servant तो ऐसा यदि कोई होता है तो यह सेवक है, who come out from car, जो कार में से आता है, who come out, who ascend or descend in helicopter. जो हेलीकॉप्टर से उतरता है, That is a servant. वह सेवक है। Who come on cycle, जो साइकिल पर आता he is है, a small servant. वह छोटा सेवक है। And who come in plane, और जो एरोप्लेन में आता they है, are big servant. वे बड़े सेवक है। We know Paul. हम पौलुस को He जानते came हैं, in ship. वह जहाज में आता था। We know Jonah. हम योना को जानते हैं, He took ticket उसने- and without ticket not, he came with his own. He buy with his own money उसने अपने ही पैसों से टिकट खरीदा and he came to Nineveh. और वह निनवे में आया। So there were the preacher. तो वह ऐसे प्रचारक थे। Jeremiah 33 and verse 1 say, यर्मिया की किताब 33वां अध्याय पहला वचन कहता है, you have just read third verse, you never read first verse. आपने केवल तीसरा वचन पढ़ा है, पहला वचन नहीं पढ़ा है। 33:3, what it says? यर्मिया 33 उसका तीसरा वचन क्या कहता है? Lord say, प्रभु कहता है, call me तू मुझे हाँ and I will तू मुझे answer बुला, you. और मैं तुझे जवाब दूंगा, And I will tell you the great and hidden thing that you don't know. और मैं तुझे बड़ी बड़ी और गहराई वाली बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। So today all servants say, तो आज हर एक दास ऐसा कहता Lord, है, you said, call me. प्रभु तूने कहा है कि मुझे पुकार। Do you know to whom this verse is for? आप जानते हो कि यह तीसरा वचन किसके लिए है? For the first verse person. तो पहला वचन जो व्यक्ति के लिए है उसके लिए यह तीसरा वचन The है। word of Jehovah come to Jeremiah. जिस समय यर्मिया के पास यहोवा का वचन आया, The second time the word came to Jeremiah. दूसरी बार यर्मिया के पास यहोवा का वचन आया। When it came, यह वचन कब आया? when he was shut down in jail. जब यर्मिया कैद खाने में बंद था तब। We know Ephesians 6 and verse 20. हम एफएससी का पत्र 6 अध्याय 20वां वचन जानते हैं। When Paul was in jail, जब पौलुस कैद खाने में था, he said, तब उसने कहा please pray for me कि मेरे लिए मेहरबानी करके प्रार्थना करो, so that I can understand for why I am here. कि ताकि मैं इस कैद खाने में क्यों डाला गया हूँ उस बात को समझ पाऊं, And you also understand. और आप भी उस बात को समझो, इसलिए प्रार्थना करो। So when person is stuck or he is in prison or he is in bondage, he has been bound. तो जब व्यक्ति को बांधा जाता है या कैद खाने में होता है या कोई बंधन में डाला जाता है, पकड़ा जाता है, If you are servant of God, यदि आप परमेश्वर के सेवक हो then there will be mocking. The people will mock at you, तो लोग आपकी मजाक भी उड़ाएंगे, might spit on you, लोग शायद आपके ऊपर थूकेंगे भी, might slap, और लोग शायद आपको थप्पड़ भी मारेंगे, might kidnap not, but might they might hijack you. और लोग शायद आपको गुमराह भी कर दे, अगवा भी कर दे। And you say, Lord, why this is happening? और तब आप कहो कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? If you are servant of God, यदि आप परमेश्वर के सेवक हो then God will talk with you. तो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। Revelation 10:7 says, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7वां वचन कहता when the है, seventh angel he blew the trumpet, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, the mystery of the God that was fulfilled as the servant, the prophet, they have proclaimed. तो जैसे सेवकों ने भविष्य वक्ताओं ने बोला था उसी तरह
परमेश्वर के उस मर्म को खोला गया, बोला गया। So the history, the hidden thing was been revealed to the servant. तो जो गुप्त बातें थी, भेद की बातें, वह सेवकों के सामने प्रकट की गई। Servant means the prophets. सेवक उसका अर्थ है भविष्यवक्ताएं। And to the prophet what God has spoken, according to that, it happened one by one. और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने जो कहा था, उसी तरह एक के बाद एक होता गया। Amos 3:7 says, आमोस की किताब 3 अध्याय 7वां वचन कहता है, God will not do nothing, or he will not put in secret, but he will reveal all his secret to his servant, the prophet. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। So if you are servant or a prophet, तो यदि आप सेवक या भविष्यवक्ता हो तो then you will know before the other person know. तो दूसरा व्यक्ति जाने उससे पहले आप जान लोगे। Amen. आमेन। When person is married, जब कोई व्यक्ति शादी करता है, Then- शादीशुदा होता है, then the person take his wife to the house and say, Father, you don't know, but I know her better. तब वह पति उस पत्नी को अपने पिता के पास ले जाकर कहता है, घर में ले जाकर, To her father. ओके, घर में ले जाकर पत्नी के पिता से कहता है कि आप आपकी बेटी को नहीं जानते हो, उससे बेहतर मैं मेरी पत्नी को जानता हूँ। So you know better. तो आप ज्यादा जानते हो। If you are servant of God, यदि आप परमेश्वर के सेवक हो तो serve God each day. हर रोज परमेश्वर की सेवा करो। Amen. आमेन। If you are humble, यदि आप नम्र हो you have wisdom. तो आपके पास ज्ञान है। Lord said that I speak mystery. It is mystery for the world, but my disciple, you are being given grace. प्रभु ने कहा कि जो मैं बोलता हूँ वह संसार वालों के लिए भेद की बातें हैं, लेकिन मेरे चेलों तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया गया है। You will understand. तुम समझोगे। Fifth thing, पांचवी बात, if you are joined in church, यदि आप कलीसिया में जुड़े हो if you तो, are joined with the people of God, यदि आप परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े हो तो you too will come to understand. आप भी समझ पाओगे। Romans 16 verse 25 says, रोमियो का पत्र 16वां अध्याय 25वां वचन कहता है, Now to him who is able to strengthen you by my gospel and by the proclaim of Jesus Christ according to the revelation of the mystery concerning of the ages past. Yes. Concealed for ages past. अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। So the mystery, it was for ages, it was hidden. तो यह मर्म सनातन युगों से छिपा हुआ था, But through Jesus Christ it was revealed. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसे प्रकट किया गया। FSC 3:10 says, एफएससी का पत्र 3 अध्याय 10वां वचन कहता To है, the church God has given revelation. कलीसिया को परमेश्वर ने प्रकाश ज्ञान दिया है। Colossi 2:1 says, कोलोसी का पत्र 2 अध्याय 1 वचन कहता है, Listen, सुनो, I want you to know in how great a struggle I am engaged for you and for Christ people at Laodicean, for all who have not yet seen me. कोलोसी का पत्र 2 अध्याय 1 वचन, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लाउदिकिया में है और उन सबके लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। I am working hard. मैं ज्यादा परिश्रम कर रहा हूं I am facing struggle और मैं समस्याओं का सामना कर रहा हूं, so that I can encourage you ताकि मैं तुम्हें प्रोत्साहन दे सकूं and keen together in love. I make you in love और मैं तुम्हें प्रेम में बनाए रखूं and you be filled with the full riches of complete understanding. और पूरी समझदारी का सारा धन आप प्राप्त कर लो। If you join to one another, यदि आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हो then you will know the mystery of God, तो आप परमेश्वर के मर्म को जान पाओगे, and that is in Christ. और वह मर्म तो मसीह में है। So when you love the church people, तो आप जब कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हो, as FSC 4:13 says the same thing. जैसे एफएससी का पत्र 4 अध्याय 13वां वचन वही बात कहता God है, has given servants
to the church. कि परमेश्वर ने कलीसिया में सेवक दिए हैं And there are five head. और 5 मुखिया है, सिर है, And that is apostle और वह प्रेरित है to equip the saint. संतों को बनाने के लिए, God उन्नति करने के give लिए। prophet to the church और परमेश्वर ने कलीसिया में भविष्यवक्ताएं दिए so that the people join in their faith. ताकि लोग उनके विश्वास में जुड़ जाए। God give evangelism, और evangelist, परमेश्वर ने सुसमाचार देने वाले दिए so that they can teach what is the truth. ताकि सत्य क्या है वह प्रचार करे, सिखाए। God give pastor to the church और परमेश्वर ने कलीसिया में पासबान दिए so that they come in subjection. ताकि लोग अधीनता में आए। And Lord gave teacher to the church और परमेश्वर ने कलीसिया में शिक्षक दिए so that people, each person learn many things. ताकि हर एक व्यक्ति बहुत सारी बातों को सीखे। So when we unite and be a church, तो जब हम इकट्ठा होकर कलीसिया बनते हैं then we come in the knowledge of the Son of God. तब हम परमेश्वर के बेटे के ज्ञान में बढ़ते हैं, उसमें आते हैं And we be perfect in Christ. और मसीह में हम सिद्ध होते हैं। So when you come to the church, तो जब आप कलीसिया में आते हो you get revelation. तब आपको प्रकाश मिलता है। Without church, you cannot even understand anything. कलीसिया के बिना आप कुछ भी नहीं समझ सकते। We know Enoch, he had book of Yesaiah, but he had not fellowship with the church member. हम जानते हैं कि उस खोजा के पास यशायाह की किताब थी, लेकिन कलीसिया के सदस्यों के साथ उसकी संगति नहीं थी। So God sent from church one preacher, and that was Philip. इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में से एक प्रचारक को खोजा के पास भेजा और वह फिलिप था। So when you can't join with the church people, you get understanding. तो जब आप कलीसिया के लोगों के साथ जुड़ते हो तब आपको समझदारी मिलती The है। book of Revelation, just 2-3 things I'm sharing and I'm completing. 2-3 बातें मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं पूरा करूंगा। Hallelujah! हालेलुया। Revelation 5th chapter verse 5. 5th chapter verse 2. प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 2रा वचन। John say, यूहन्ना ने कहा, I saw mighty angel. He was proclaimed in the loud voice. मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार कर रहा था। He was speaking. वह बोल रहा था, Who is worthy to open this book? कि इस पुस्तक को खोलने के योग्य कौन है? Who is able to break the seal? और इस मुहर को तोड़ने के योग्य कौन है? Who is able to read? उसे कौन पढ़ पाएगा? Who is able to understand? उसे समझने के योग्य कौन है? If your child writes something, can you understand? यदि आपका बच्चा कुछ लिखे तो क्या आप समझ सकते हो? If your child who is not able to speak, if he speak, do you understand? यदि आपका बच्चा बोल नहीं पाता है और यदि कुछ बोले तो क्या आप समझ सकते हो? Revelation book, it's like that. प्रकाशित वाक्य उस तरह की ही किताब है। Third verse. 3रा वचन। And no man in heaven or no man in the earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. और ना स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। No Satan, कोई शैतान नहीं, no, not even Satan who is in heaven, शैतान भी उसे नहीं समझ पाया जो स्वर्ग में है, आकाश में है, and who are beneath the earth, और जो पृथ्वी के नीचे है। those who thought that I am a wisest person, जिन्होंने यह सोचा कि मैं सबसे उत्तम ज्ञानी हूँ, on the earth who are called wise men. और पृथ्वी पर जिनको ज्ञानी पुरुष कहा जाते हैं। Here the angel said, यहाँ पर स्वर्गदूत ने कहा, there is no man in heaven, स्वर्ग में भी ऐसा कोई नहीं there is निकला, no man on the earth, और पृथ्वी पर भी ऐसा कोई नहीं and है, neither beneath the earth, और पृथ्वी के नीचे भी कोई नहीं who is है, able to understand this revelation book. कि जो इस प्रकाशित वाक्य की किताब को समझ सके। And today people speak about revelation book और आज लोग प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में बोलते हैं, प्रचार करते हैं, because they are not of heaven, क्योंकि वे लोग स्वर्ग के नहीं they are हैं not of earth, और वे लोग पृथ्वी पर के भी नहीं they हैं, don't came out from the earth. और वे लोग पृथ्वी में से भी बाहर नहीं आए हैं। Only those people cannot understand. केवल वे ही लोग समझ नहीं सकते प्रकाशित वाक्य को। So John, Lord disciple, he wept इसीलिए यूहन्ना जो प्रभु का चेला था वह रोया, because no man was found क्योंकि कोई मनुष्य मिला नहीं who can open and read the book, कि जो इस किताब को खोल सके और पढ़ सके can understand even. और इस किताब को समझ भी सके, ऐसा कोई नहीं निकला।
But today there are people who can understand easily. लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो आसानी से इसे समझ सकते हैं। John, who wept? यूहन्ना जो रोया, He should say, let me try. यूहन्ना को ऐसा कहना चाहिए था कि मुझे प्रयास करने दो इस किताब के लिए। What is written? कि क्या लिखा है, What will happen? क्या होगा। One elder came to John and said, एक वडील यूहन्ना के पास आया और कहा weep not. कि रो मत, Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed. He has been overcome to open the book, and he has the power to loose the seven seal even of this book. और पांचवा वचन कि उसने कहा कि मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। He is only Jesus Christ. वह केवल यीशु मसीह है। Only Jesus Christ understands revelation. केवल यीशु मसीह ही प्रकाशित वाक्य को समझ सकता है, Because this book belongs to Jesus Christ. क्योंकि यह किताब यीशु मसीह की किताब है। Read Revelation 1:1. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला वचन पढ़ो The revelation of Jesus Christ. कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, Not the mystery of Jesus Christ, यीशु मसीह का भेद या गुप्त बात नहीं, but this is the understanding of Jesus लेकिन Christ, यह यीशु मसीह की समझ है which was given, which God gave him जो परमेश्वर ने उसे दिया to tell the world, इस संसार को बताने के to लिए, tell the servant of God परमेश्वर के दासों को बताने के लिए that what shortly is going to come. कि कुछ ही समय में क्या होने वाला है वह कहने के लिए। So only Jesus Christ understand. तो केवल यीशु मसीह समझ सकता Who है। are humble, they can understand. जो नम्र लोग हैं वे समझ सकते Who हैं। are always united with the church, they can understand. हमेशा जो कलीसिया के साथ जुड़े हुए रहते हैं वे ही केवल वे ही समझ सकते हैं। If you are a prophet, you can understand. यदि आप भविष्यवक्ता हो तो आप समझ सकते हो। If God can, if God will, you can understand. यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो आप समझ सकते हो। And if you love God, all will be revealed to you. और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो सारी बातें आपको समझाई जाएगी, प्रकट की And जाएगी, there will be no mystery. और आपके सामने कोई भेद की बात नहीं होगी। To humble, there is wisdom. नम्र लोगों के साथ लिए ज्ञान है। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें, Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। He has given His Spirit. उसने अपना आत्मा दिया है, He has given His grace. उसने अपना अनुग्रह दिया है, He has been faithful with us. वह हमारे साथ विश्वास योग्य रहा And है He called us friends. और वह हमें मित्र कहता है। He said, I don't call you servant. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता, Or master, whatsoever he do, he don't show to his servant. क्योंकि मालिक जो कुछ भी करता है वह अपने दासों को नहीं बताता है, But to friend, all thing is open. लेकिन मित्रों के साथ सारी बातें खुली रहती है। Jesus Christ, thank you. यीशु मसीह आपका धन्यवाद, For you are the great, you call us friend. क्योंकि आप बहुत महान हो और आपने हमें मित्र कहा। We learn humbleness from you. हम नम्रता हम आपकी ओर से सीखते हैं, From you we learn love the God. और आप में से Love God. आपके द्वारा ही हम परमेश्वर से प्रेम करना भी सीखते हैं। Thank you for all your word, Lord. प्रभु आपके सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद। In the world there is many mystery. दुनिया में, संसार में बहुत सारी गुप्त बातें हैं। Our life is also mystery. हमारा जीवन भी भेद की बात है। Our ministry is a mystery. हमारी सेवकाई का काम भी भेद की बात है। When we meet people, it is a mystery. जब हम लोगों से मिलते हैं तो वह भी मर्म है। When we read your Bible, it is mystery. जब हम आपका बाइबल पढ़ते हैं तो वह भी भेद की किताब है। When there is a vision or dream, it is a mystery. जब कोई दर्शन हो या स्वप्न हो तो वह भी मर्म की बात है। Every time there is mystery in our life. हमारे जीवन में हर बार मर्म की बात होती है। We are not able to understand, know clearly. हम उसे स्पष्टता से नहीं समझ सकते हैं। Help us, Lord. प्रभु हमारी मदद करो। We will start loving you. हम आपसे प्रेम करना शुरू God, करेंगे। we love you. परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको प्रेम करेंगे। If it is your grace, we can understand. यदि आपका अनुग्रह हो तो वह हम समझ सकेंगे। If we humble ourselves and use not our mind, यदि हम अपने आप को नम्र करें और हमारा दिमाग का इस्तेमाल ना करें you give grace. तो आप अनुग्रह देते हो, You give wisdom. आप ज्ञान देते हो। If we have been called your servant यदि हमें आपके सेवक कहा गया है तो and we suffer for you,
और आपके लिए यदि हम दुख उठाते हैं then we are your servant. तो हम आपके सेवक हैं। And for your servant there is revelation, और आपके सेवकों के लिए ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। not mystery. सेवकों के लिए भेद की बातें नहीं But होती, you talk clearly. लेकिन आप उनके साथ स्पष्टता से बात करते If we हो। abide in church, यदि हम कलीसिया में जुड़े हुए रहते we हैं, join with the people, your people. यदि आपके लोगों के साथ हम जुड़े हुए रहते If we हैं, have fellowship with your people, यदि हमारी संगति आपके लोगों के साथ रहती है, then we will have understanding. तो हमें समझदारी मिलेगी। We will not, then all things will be open, nothing hidden. तो सारी बातें हमारे सामने खोली जाएगी, कुछ भी मर्म नहीं होगा। And this is what your word we learn. और ऐसा आपके वचन से हमने यह सीखा। Help us to follow, Lord. यह बातों को मानने के लिए प्रभु हमारी मदद करो। Let 100-fold you see within us. हमारे अंदर आप 100 गुना देखो। With what call you have called, आपने let it जो be accomplished. आपने जो बुलाहट से हमें बुलाया है वह काम आपका पूरा हो जाए। Let your word, whatever you speak, we understand. आपका वचन जो कुछ भी आप बोलो उसे हम समझे। Lord, help us. प्रभु हमारी मदद Open करो। our ear. हमारे कान खोलो। Give us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Make us understand. हमें समझाओ। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Let's continue praying what Lord taught. आइए मिलकर प्रार्थना करें जो प्रभु ने सिखाई। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we have forgiven all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy है, is power, पराक्रम आपका and है, Thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and love of our Father और हमारे पिता का प्रेम and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता Be with you. आपके साथ बनी रहे। and with all who are watching or joined with the church. और जो लोग देख रहे हैं कलीसिया के साथ जुड़ते हैं सबके साथ बनी रहे। In Jesus' name. यीशु के नाम में I say Amen. मैं आमेन कहता हूँ। आमीन। God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Praise God. Shalom. प्रेज गॉड, सलाम। Praise God.